Hello student, Hemant sir is here. So today we are going to start the numericals depend upon the maximum work done. प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क डन के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स ऑन द मैक्सिमम वर्क डन व्हेन द प्रोसेसेस आर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क डन, which is the problem number 4.4. So the problem says 2 moles of an ideal gas are expanded isothermally and reversibly from 20 liter to 30 liter at 300 Kelvin temperature. Calculate the work done. If the value of R is given, which is 8.314 Kelvin Joule, Kelvin inverse, mole inverse. Okay, so now we have to write the first part, which is the given. So now we have to understand the given part of the question first. Okay, so the question says when 2 mole of an ideal gas are expanded from 2 mole of ideal gas means n की value है 2 is expanded from 20 लीटर टू 30 लीटर. दैट मीन्स इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा 20 लीटर एंड फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 30 लीटर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन. दिस इज आवर टेम्परेचर. देन वी हैव टू फाइंड द वर्क डन इन द रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल प्रोसेस. एंड द वैल्यू ऑफ आर वी नो दैट इट इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड विच इज 8.314 जूल केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स. And the formula we have for the maximum work done is W max equals to negative 2.303 into nRT into log to the base 10 V2 divided by V1. Okay, so this is the formula that we are going to use. So now we are going to solve the question first. So we had to write the formula. So we had to write solve here. Okay, now the formula is W max equals to negative 2.303 into nRT into log to the base 10 and V2 divided by V1. Okay, now we have to substitute all the values in here. Okay, now substitute values of or given values in above equation. Okay, so W max equals to negative 2.303 into what is n? N is number of moles. A number of moles we have 2 moles. So here we have to write 2 mole into we have R. R is 8.314 joule Kelvin inverse mole inverse. So here we have to write 8.314 joule Kelvin inverse mole inverse into we have T. T is temperature and which is 300 Kelvin. So here we have to write 300 Kelvin into log to the base 10 V2. V2 we have 30 liter. So here we have to write 30 liter divided by V1 is 20 liter. So here we have to write 20 liter. Okay, now liter and liter will get cancelled and 0 in 0 is also get cancelled. Here we have mole and here we have mole inverse. Here we have Kelvin and here we have Kelvin inverse. This will get cancelled. Now what we have? So W max equals to minus C. We are multiplying this 2 and 2.303. We will get 4.606 into here we have 8.314 into here we have 300 and the unit will be joule.
into log to the base 10. See, 3 by 2 is 1.5. Okay, 1.5. Now we have to check first the value of log to the base 10 of 1.5. Okay, so W max equals to negative 4.606 into 8.314 into 300 into, see, the value of log to the base 10 of 1.5 is 0.1761. It is 1761. Okay, so what you have to do, आपको इसकी जो वैल्यू है लॉग टेबल में देखना है. ओके, सी पॉइंट के पहले में 1 डिजिट है, सो हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 0. ओके, सो द आंसर जो आएगा वो आएगा 0 पॉइंट समथिंग में. ठीक है, फिर आपको देखना है 15 का 0 में. लॉग टेबल जब आप देखोगे तो आपको चेक करना पड़ेगा द वैल्यू ऑफ, सी यहां पर लिख देते हैं हम. सो ये उसको ऐसा लिख सकते हैं हम 0 पॉइंट. अब हमको देखना है इट इज, हमको पहले इसको 4 डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं 1.500. ओके, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 0 पॉइंट. अब हमको देखना है 15 का 0 में, तो ये आएगा 1761. ओके, जब आप लॉग बुक चेक करोगे सो यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग टू द बेस 10 1.5 विल बी 0.1761. ओके, नाउ अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज आ जाएगी हमारी, W max इक्वल्स टू आ जाएगा negative 2.023 और यूनिट क्या आ जाएगी, जूल. ओके, सो जूल. सो ये आ जाएगा हमारा सी, ये आएगा एक्चुअल में 2023 जूल आएगा. ठीक है, अब अगर इसको हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको और ऐसा लिख सकते हैं, और W max इक्वल्स टू नेगेटिव 2.023. अब जूल कन्वर्ट हो जाएगा किलो जूल में. ओके, सो this is answer in kilojoule and this is in joule. Now we have our solution, so now we have to write the result. Okay, so the result क्या हो जाएगा, so the result will be, okay, see the work done की value negative आ रही, that means the work is done by the system on the surrounding होगा, feasibility of work. Okay, so we have to write 2.023 kilojoule of work is done by the system on the surrounding. Okay, so this is the way you have to solve the problem. Okay, और बहुत ज्यादा इजी है, बस आपको इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर यू कैन मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल ऑल्सो. सो पहले आपको लॉग टेबल सॉल्व करना सीखना पड़ेगा, सो दैट यू विल सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम इजीली. ओके, अदरवाइज यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑन योर ओन बाय यूजिंग द पेपर. ओके, सो राइट इट डाउन नाउ. So I hope आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. So now we are going to solve the second problem, okay, which is 4.5. Okay, so the problem says 22 gram of carbon dioxide are compressed isothermally and reversibly at 298 Kelvin from initial pressure of 100 kilopascal when work obtained is 1.2 kilojoule. Find the final pressure. So now we are going to solve the question. So first we have to understand the question by the given data. Okay. So the question says 22 gram of carbon dioxide. See, हमको ग्राम में दिया हुआ है, हमको मोल्स नहीं दिया हुआ है. So first we have to calculate the mole. फिर दिया हुआ है टेम्परेचर 298 केल्विन
एंड प्रेशर दिया हुआ है हमको P1 इक्वल्स टू 100 किलो पास्कल। देन वर्क डन हमको दिया हुआ है इट इज 1.2 किलो जूल एंड आर की वैल्यू तो हमको पता है इट इज 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और हमको फाइंड करना है फाइनल प्रेशर दैट इज P2 एंड द फॉर्मूला विल बी Wmax इक्वल्स टू माइनस 2.303 इंटू nRT log to the base 10 P1 डिवाइड बाय P2। सो अब हम करेंगे सॉल्व। सो फर्स्ट हमको देखो टेम्परेचर है, R की वैल्यू है, P1 हमको दिया हुआ है, P2 कैलकुलेट करना है, Wmax भी दिया हुआ है। सो हम यहां से n की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, सो n की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दिया हुआ है मास ऑफ CO2 कितना दिया, इट इज 22 ग्राम, और हमको पता है मोलर मास ऑफ CO2, मोलर मास ऑफ CO2 ये होता है 44 ग्राम मोल इनवर्स। अब देखो 44 ग्राम कैसे आया, तो हमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2, मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 16, अब ऑक्सीजन के 2 एटम है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2, सो टोटल मास ऑफ O2 इज 32। कार्बन का मास होता है 12, सो 12 और 32 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 44। ओके, इसको जब इसको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 44, और मोलर मास की यूनिट है ग्राम मोल इनवर्स। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। सो हमको पता है अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। सो हमको पता है इट इज N इक्वल्स टू होता है मास डिवाइड बाय मोलर मास। सो N इक्वल्स टू मास हमको दिया हुआ इट इज 22 ग्राम, तो जाएगा 22 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास अभी हमने कैलकुलेट किया इट इज 44 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम से ग्राम कैंसल, 21 is 21 and 22 2s are 44. So 1/2 is n equals to it is 0.5. अब मोल ऊपर जाए, मोल का इनवर्स है ऊपर जाएगा तो जाएगा मोल। सो ये हो गया हमारा n, so that we have to use over here, okay, in this formula. So इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, so हम इसको इरेज कर देते हैं। So now we are going to solve the problem now. So now formula we have Wmax equals to negative 2.303 nRT log to the base 10 P1 डिवाइड बाय P2। सी प्रीवियस वीडियो में हमको वॉल्यूम दिया था और वॉल्यूम होता है V2 डिवाइड बाय V1, बट प्रेशर होता है P1 डिवाइड बाय P2। सुना Wmax दिया हुआ है हमारे पास कितना है Wmax, इट इज 1.2 किलो जूल, लेकिन R में हम यहाँ पर जूल ले रहे हैं तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस किलो जूल इंटू जूल। सो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 1000। ओके, सो 1000 आ गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो किलो जूल कन्वर्ट हो जाएगा जूल में, इक्वल्स टू माइनस 2.303 इंटू एन। एन की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया, इट इज 0.5 मोल इंटू आर की वैल्यू है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इंटू टेम्परेचर हमको दिया हुआ है इट इज 298 केल्विन, से हो जाएगा 298 केल्विन इंटू लॉग टू द बेस 10। P1 हमको दिया हुआ है इट इज P1 है 100 किलो पास्कल, से हो जाएगा 100 किलो पास्कल डिवाइड बाय P2, ये तो हमको कैलकुलेट करना है। ओके, सो नाउ सी ये जूल से ये जूल कैंसल, पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव में है और पावर दोनों पॉजिटिव है, और अपोजिट साइड में तो विल गेट कैंसल। नाउ मोल एंड मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स से केल्विन कैंसल, तो आंसर जो आएगा वो आएगा किलो पास्कल में। ओके, सो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट, वी विल गेट 1200 इक्वल्स टू माइनस 2.303 इंटू 0.5 इंटू 8.314 इंटू
298 into log to the base 10 100 kilopascal डिवाइड बाय P2। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसफर करेंगे तो उसके डिवाइड में आ जाएगा। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट, सी वी आर ट्रांसफरिंग दिस पोर्शन टू द अनदर साइड। ओके, सो व्हाट वी विल गेट log to the base 10 100 kilopascal डिवाइड बाय P2 इक्वल्स टू हो जाएगा, सी नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव साइन 1200 डिवाइड बाय हो जाएगा 2.303 इंटू 0.5 इंटू 8.314 इंटू 298। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इट इज log to the base 10 100 kilopascal डिवाइड बाय इट इज P2 इक्वल्स टू, देखो इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव में आएगा तो हो जाएगा नेगेटिव और ये आ जाएगा इट इज 0.4206। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा नेगेटिव 0.4206। अब हमको ये लॉग जो है उसको रिमूव करना है। सो लॉग को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड में एंटी लॉग ले लेंगे। क्या हो जाएगा, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। सो क्या हो जाएगा, अब एंटी लॉग से लॉग कैंसिल तो इस साइड में क्या बच जाएगा, चलो हम यहां पे सॉल्व करेंगे। ओके, सो एंटी लॉग जब दोनों साइड में लेंगे तो एंटी लॉग से ये लॉग तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो क्या बच जाएगा यहां पर, इट इज 100 kilopascal डिवाइड बाय P2 इक्वल्स टू, अब देखो इस साइड में भी एंटी लॉग लेंगे, इस साइड का तो कैंसिल हो गया बट इस साइड में एग्जिस्ट करेगा, सो हो जाएगा एंटी लॉग नेगेटिव 4206। अब देखो हम नेगेटिव साइन का इट इज नेगेटिव 0.4206। अब नेगेटिव का एंटीलॉग हम नहीं चेक कर सकते, सो दैट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द पॉजिटिव फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, इसमें +1 और -1 ऐड कर देंगे। सब इससे क्या होगा, हम +1 में से इस नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे और उसमें -1 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो ये जो 1 है इट इज 1.0000। अब यहां पर है -0.4206, इट इज 4206। हमको सब्सट्रैक्ट करना है बिकॉज हम निगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, सो ये हो जाएगा 10 में से 6 गए 4, यहाँ बच गया 9 में से 0 गए 9, यहाँ बच गया 9 में से 2 गए 7 और यहाँ पर है 9, सो 9 में से 4 गए, 4 में से 9 गया तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 0, तो हो जाएगा 0.5794। अब इसमें हम -1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1.5794। ओके, सो ये हो जाएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे एंटीलॉग की वैल्यूज देखेंगे तो इसकी जब एंटीलॉग की वैल्यू हम पहले इसको यहां पर लिख लेंगे। ओके, सो ये हो जाएगा 100 kilopascal डिवाइड बाय P2 इक्वल्स टू, सी हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना है। अब देखो हम -1 को बार 1 लिखते हैं, ऐसा बार 1.5794 और जब हम इसका एंटीलॉग देखेंगे तो एंटीलॉग कैसे देखेंगे, हम देखेंगे 0.57 का 9 और मीन डिफरेंस 4 को हम ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू होती है इट इज बार 1.5794। एक्चुअली में एंटीलॉग देखना है इसका, एंटीलॉग। ओके, तो इसकी वैल्यू आती है 0.3797, इसका आएगा एक्चुअल में 3797 और सी पॉइंट के पहले जो नंबर होता है वो चल जाता है 10 के पावर में, से हो जाएगा 10 to the power -1 और यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा 3 के बाद।
और जब 3 के बहुत पॉइंट है और हम इसको 10 टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.3797. ओके, सो आ जाएगा 0.3797. इट इज 9. ओके, सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 100 किलो पास्कल डिवाइड बाय P2 इक्वल्स टू हो जाएगा 0.3797. ओके, सो हम लास्ट यहां पर सॉल्व कर रहे हैं. ओके, अब देखो हमको P2 निकालना है वैल्यू. सो हम क्या करेंगे, इस 0.3797 को ट्रांसफर करेंगे. सो ये 100 के डिवाइड में आ जाएगा. ओके, और हम P2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो यहां पर सी हमारे पास क्या है, P2 निकालना है तो P2 को ट्रांसफर करेंगे इस साइड में और ये आ जाएगा नीचे. सो क्या हो जाएगा, इट इज P2 इक्वल्स टू हो जाएगा 100 किलो पास्कल. इट इज 100 किलो पास्कल डिवाइड बाय वैल्यू है 0.3797. 0.3797 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अबाउट 0. इट इज क्या आ जाएगा अबाउट 263 पॉइंट समथिंग. ओके, सो 263.4 के आसपास वैल्यू आ जाएगी. ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे और वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज किलो पास्कल में. ओके, so that will be the final pressure. Okay, so this is the way we have to solve the numerical. So now we have the answer, so we have to write the result. So result will be, okay, so result क्या हो जाएगा, the final pressure of the system will be 263.4 kilo pascal and it is our answer. Okay, so first you have to write this part, then this part, फिर ये वाला पार्ट. अब ये एक्चुअल में एंटी लॉग का कैलकुलेशन है और जब भी आप लॉग्स यूज करते हो तो आपको कैलकुलेशन साइड में शो करना पड़ता है. ओके, एंड लास्ट में आपको ये लिखना है अलोंग विथ रिजल्ट. जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा गिवन पार्ट, देन टू फाइंड फॉर्मूला, फिर सॉल्व और लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा रिजल्ट. ओके, देन यू विल गेट 100% मार्किंग ऑन योर न्यूमेरिकल्स. ओके, सो राइट इट डाउन. So now we are going to solve the next problem, which is problem number 4.6. So the problem number 4.6 says 300 millimole of an ideal gas occupies 13.7 cubic decimeter at 300 Kelvin. So 13.7 cubic decimeter is the volume, initial volume. Okay, calculate the work done when the gas is expanded until its volume has increased by 2.3 cubic decimeter. So जो 2.3 cubic decimeter है ये एक्चुअल में क्या है, इंक्रीज्ड वॉल्यूम यानी डेल V की वैल्यू है. ओके, सो हमको कैलकुलेट करना है ए आइसोथर्मली अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 0.3 बार. ओके, सो हमको वर्क डन निकालना है फर्स्ट कंडीशन में. सेकेंड कंडीशन में हमको वर्क डन निकालना है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली. एंड थर्ड कंडीशन में आपको निकालना है वर्क डन इन वैक्यूम. ओके, सो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका गिवन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ओके, सो द क्वेश्चन सेज 300 मिलीमोल ऑफ एनी गैस. अब 300 मिलीमोल का मतलब हम उसको कन्वर्ट करेंगे मोल्स में, से हो जाएगा 0.3 मोल्स. हमको इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, इट इज 13.7 क्यूबिक डेसीमीटर.
अब सिस्टम जब जब एक्सपांड हो रहा है, सो वॉल्यूम कितने से चेंज हो रहा है? इट इज 2.3 क्यूबिक डेसीमीटर से। ओके, सो तो हम यहाँ पर V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो V2 क्या हो जाएगा? हमको पता है डेल V इक्वल्स टू होता है V2 माइनस V1। अब हमको डेल V की वैल्यू पता है, V1 की वैल्यू पता है, तो V2 निकाल सकते हैं। सो क्या हो जाएगा? V2 इक्वल्स टू हो जाएगा डेल V प्लस V1। सो V2 इक्वल्स टू डेल V की वैल्यू है इट इज 2.3 प्लस V1 है 13.7। ओके, सो दोनों को ऐड करेंगे, सो V2 हो जाएगा 16 dm क्यूब, यानी क्यूबिक डेसीमीटर। ओके, सो ये शॉर्ट कैलकुलेशन है, सो दैट हमको V2 की वैल्यू निकालनी है, वेयर वी विल यूज इन सेकेंड कंडीशन, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तब। ओके, सो द फर्स्ट कंडीशन वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन इन आइसोथर्मली अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 0.3 बार। सो ये जो 0.3 बार है एक्चुअल में ये P एक्सटर्नल की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? P एक्सटर्नल। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन हमको निकालना है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। सो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, सो क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल प्रोसेस, सो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला विल बी W इक्वल्स टू होता है नेगेटिव P एक्सटर्नल इंटू डेल V। सो W इक्वल्स टू नेगेटिव P एक्सटर्नल की वैल्यू दिया हुआ है, इट इज 0.3 बार, सो हो जाएगा 0.3 इंटू डेल V। चेंज इन वॉल्यूम हमको दिया हुआ है, इट इज 2.3 क्यूबिक डेसीमीटर। सो 0.3 एक्चुअल में बार में है एंड इंटू डेल V दिया हुआ है हमको 2.3 क्यूबिक डेसीमीटर। सो यूनिट क्या हो जाएगी? बार क्यूबिक डेसीमीटर। ओके, सो W इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 3s are 9 इंटू 3 2s are 6, तो आंसर हो जाएगा 0.69 dm क्यूब बार। ठीक है, सो ये भी हमारा आंसर है, बट हमको इसको जूल में कन्वर्ट करना है। तो जब हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? W इक्वल्स टू माइनस 0.69 dm क्यूब बार। हम इसको 100 जूल पर dm क्यूब बार से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो dm क्यूब बार से dm क्यूब बार कैंसिल, सो आंसर किसमें आ जाएगा? जूल्स में। ओके, देयरफॉर W इक्वल्स हो जाएगा माइनस, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.2 बार इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 69 जूल। ओके, सो दैट इज आवर फर्स्ट आंसर। सो हमने ए वाला जो पार्ट है ये सॉल्व कर लिया। नाउ बी वाला पार्ट हमको निकालना है वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, सो फॉर्मूला क्या है? इट इज W max इक्वल्स टू माइनस 2.303 इंटू nRT इंटू log टू द बेस 10 V2 डिवाइड बाय V1। अब वी हैव ऑल द वैल्यूज, तो हम यहां पर पुट कर देंगे, इससे क्या हो जाएगा? W max इक्वल्स टू नेगेटिव 2.303 इंटू n की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, n की वैल्यू कितनी है? इट इज 0.3 मोल, तो हम यहां पर लिखेंगे 0.3 मोल इंटू R की वैल्यू पता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। फिर T हमको दिया हुआ है, T कितना है? इट इज 300 केल्विन, सो हम यहां पर लिख देंगे 300 केल्विन इंटू log टू द बेस 10 V2 हमने कैलकुलेट किया था 16 dm क्यूब, हो जाएगा 16 dm क्यूब डिवाइड बाय V1 हमको दिया हुआ है, इट इज 13.7 dm क्यूब, इट इज 13.7 dm क्यूब। सो dm क्यूब से dm क्यूब
कैंसिल, यहाँ पर मोल से मोल इनवर्स कैंसिल और केल्विन इनवर्स से केल्विन भी कैंसिल। सो क्या बच गया हमारे पास, इट इज W max इक्वल्स टू नेगेटिव 2.303 इंटू 0.3 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू सी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इट इज 16 डिवाइड बाय 13.7, सो ये आ जाएगा, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इट इज log टू द बेस 10 16 डिवाइड बाय 13.7। ओके, अब हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। सो क्या करेंगे, हम इसके वैल्यू और इन दोनों को डिवाइड करेंगे और उसका लॉग टेबल में वैल्यू देख लेंगे। सो वैल्यू आ जाएगी उसकी W max इक्वल्स हो जाएगा -2.303 इंटू 0.3, ऐसा करेंगे हम 0.3 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 3s are 9, 3 0 is 0, 3 3s are 9 and 3 2s are 6। सो आंसर आ जाएगा 0.3। यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 है और यहाँ पर एक 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4 के बाद में आ जाएगा पॉइंट, सो हो जाएगा 0.6909 इंटू ये हो जाएगा 8.314 इंटू 300 इंटू। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0674। ओके, हम इसको सॉल्व करने के बाद जब लॉग में वैल्यू देखेंगे तो आ जाएगी 0.067। ओके, नाउ अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ। ओके, सो जब हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 116.1 जूल, आ जाएगा 116.1 जूल। सो ये किसकी वैल्यू होगी, W max की, और आंसर आएगा नेगेटिव में। सो W max इक्वल्स टू हो जाएगा नेगेटिव 116.1 जूल। सो दैट विल बी और सेकेंड आंसर। ओके, नाउ थर्ड कंडीशन है हमारे पास सी, वर्क डन इन वैक्यूम। सी ये वाला जो क्वेश्चन है आपको इसको लॉग टेबल की हेल्प से सॉल्व करना पड़ेगा, देन यू विल गेट आंसर इज 11 नेगेटिव 11, इट इज नेगेटिव 116.1 जूल, इट इज JOUL जूल। नाउ थर्ड कंडीशन, इट इज सी। नाउ वर्क डन इन वैक्यूम, वर्क done in vacuum. Okay, so we know in vacuum P external क्या होगा, 0। अब वैक्यूम में अपोजिंग फोर्स नहीं होता, दैट्स वाई जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, 0। देयरफॉर वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन है W इक्वल्स टू माइनस P external into del V। सो W इक्वल्स टू माइनस P external कितना है 0 इंटू del V कितना है, del V इज 2.3, सो 2.3। अब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। देयरफॉर W इक्वल्स हो जाएगा 0। ओके, सो अब हमारे पास तीनों के तीनों आंसर है। ओके, सो हम लिख लेंगे रिजल्ट। सो रिजल्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज कितना, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन इट इज नेगेटिव 69 जूल, नेगेटिव 69 जूल। अब नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, द वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। बी कंडीशन में हमारा वर्क डन कितना है, नेगेटिव 116.01। हो जाएगा वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस इज कितना है, इट इज 11
-116.1 जूल। थर्ड कंडीशन, वर्क or no work is done in vacuum. Okay, so this is the way we have to solve the problem. Okay, so हमने इस न्यूमेरिकल में तीनों टाइप के वर्क डन निकाले हैं। फर्स्ट हमने निकाले वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, सेकंड में आइसोथर्मल एज वेल एज रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने निकाले वर्क डन इन वैक्यूम। और वैक्यूम में से कोई वर्क डन होता ही नहीं, दैट्स व्हाई इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, 0 है, बिकॉज अपोजिंग फोर्स वर्क ही नहीं करता, बिकॉज देयर इज नो एनवायरमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ द वैक्यूम। ओके, सो this is the way we have to solve the numerical. Okay, so if you want to write, you can write or take a screenshot. अब ये न्यूमेरिकल्स जब तक आप सॉल्व करके एक बार दो बार ट्राई नहीं करोगे, आपको परफेक्टली नहीं आएंगे। ओके, आप भूल जाओगे। दैट्स व्हाई इन क्वेश्चन को एक बार दो बार वीडियो में ऑब्जर्व करो, देखो, समझो और फिर ट्राई इट ऑन योर ओन। ओके, सो आपको एक बार दो बार सॉल्व करके भी देखना है, सो दैट यू कैन सॉल्व फास्ट इन योर एग्जामिनेशन। और ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।